So the name of chapter is beta transport इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मेन है, ठीक है। देखो प्लांट में क्या है बच्चे कि बहुत सारे सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे ग्लूकोज बन गया, उसके बाद वो सक्रोज में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद स्टार्च में जाएगा। और या मैं कहूँ कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं। तो प्लांट जब ग्रो करता है तो प्लांट के हर पार्ट को उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। है ना। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनमें रिक्वायरमेंट होगी वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, ठीक है। तो कुछ में तो क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, ये उसका स्टेम ग्रो कर रहा है बच्चे, और नीचे ग्रीन कलर से नहीं रेड से दिखा दे रहे हैं, नीचे क्या ग्रो कर रही है, उसकी रूट्स ग्रो कर रही है ना, एंड देयर लीव्स आर ग्रोइंग, है ना। सो द transport can be within the roots, within roots, within leaves, or in the stem. So when the roots is composed of various types of cell, na, we have studied the anatomy of the root. So it can have cell to cell transport or from root to stem transport. So we are now looking, हमें दिख रहा है कि भाई अब जो ट्रांसपोर्ट है दो तरीके के हैं। एक तो है जो बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस में हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड द ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। दैट कैन बी ऑफ लॉन्ग टाइप ट्रांसपोर्ट एंड शॉर्ट टाइप ट्रांसपोर्ट, है ना। तो शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वी कैन सी। क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है, थोड़ा लिख देते हैं इसमें यहाँ पे। In flowering plants, the water, mineral ions, organic acids, and nutrients, mineral nutrients, एंड हटा दे रहे हैं, यहां से कॉमा लगा ले रहे हैं, एंड हार्मोन्स, ये सब के सब क्या होने चाहिए बच्चों? ट्रांसपोर्ट। आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, आर ट्रांसपोर्टेड। ऑलराइट, so these are transported, and these can be transported if the distance is short. That means that is a short distance transport. Okay bacha? Yes sir. But when the distance is long, that will be called as long distance transport. Clear? Yes sir. Okay, now first we will understand the short distance transport. Write it down and inform me. Done sir. Done? Okay, great. Look here. Look. First is short distance transport. Okay. What actually is short distance transport? Do you understand? Over a small distance. Clear? Yes sir. Yes. Suppose this is a cell and this is another cell. Okay. Yes sir. This is another cell. Okay. There might be some connections between all these cells known as plasmodesmatas. Okay. Or there might not be connection between these cells. Okay. And you know that the transport is a function of plasmodesmata or plasma membrane. Plasma membrane, है ना बच्चा?
So the short distance transport can occur by diffusion, है ना, movement of ion solute from high concentration to low concentration. low concentration. ठीक है. So in this case, whenever the short distance transport is required, diffusion occurs. And दूसरा, if the cytoplasm, here is the cytoplasm, okay, the cytoplasm performing the streaming, okay, intercellular transport. Suppose there is something need to be transport from the cytoplasm to the nucleus, okay, so there will be cytoplasmic streaming. What will happen here? Cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming. All right, bacha. Yes, The sir. second mode of transportation is cytoplasmic streaming. Clear, bacha? So Yes, sir. that is the two mode for the short distance transport, okay. But for the long distance transport, two important structures are required, है ना? Two important structure are required, that is xylem and phloem. Whenever the question arises, the xylem and phloem are not required in which type of transport, your answer will be Short distance. very good, है ना? So I think we are clear with the short distance transport. Now we will discuss the Long distance. long distance transport. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Long distance transport. ओके, ठीक है. अब whenever, तो ये बताओ कि घर में पाइपलाइन कहाँ बिछी है? वहां पाइपलाइन लगी होगी, जैसे कि मान लो आपका सेकंड फ्लोर पे है मकान, या फिर आपके घर में 3-3 4-4 फ्लोर्स हैं, तो क्या होता है कि नीचे से पाइप आ रहे होते हैं, वो आपके हर जगह जुड़े होते हैं, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कैसा है? लॉन्ग डिस्टेंस, है ना? तो सिमिलरली क्या होगा, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना होगा फ्रॉम रूट टू स्टेम, और फ्रॉम लीव्स टू रूट, और फ्रॉम स्टेम टू अनदर लीव्स, so that will include pipelines, and that basically pipeline and vascular tissues, xylem and phloem. Okay बच्चों? Yes, sir. ठीक है. और you know that दूसरी चीज क्या है बच्चों की, देखो छुटका छुटका सामान नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं जाएगा. अगर आपका ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट होना है तो वो भी मास में जाएगा, वाटर भी होना है तो वो भी मास में जाएगा, हार्मोन्स भी आएंगे, तो इकट्ठा होके जाता है. ऐसा नहीं थोड़ा चला गया फिर थोड़ा चला गया, नहीं. ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सब्सटेंस मूव इन बल्क. पॉइंट क्लियर? Yes, sir. So number 1 point for the long distance transport is proceed through what? Vascular bundles. Very good. Xylem and Phloem. phloem. Whenever these xylem and phloem perform transportation, the transportation is known as Translocation. excellent. Achal बोलिए. Yes, sir. Very good, है ना? The transport of food or water or anything else from the xylem phloem is known as translocation. So another thing, over long distance, substance move in bulk, and that is known as mass flow. Okay, write it down. Done, sir. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we will be discussing another topic, and that is direction of transport. Okay. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, we are using two conducting tissue. Number 1 is Xylem. and number 2 is phloem. Are we clear here? Yes, sir. चलिए भाई, ठीक है, ठीक है. And when the plant is rooted, मतलब जिन प्लांट की क्या हो बच्चे?
Roots. रूट्स हो, जड़ें हो और अंदर जमीन में हो, तो the water and ions through the xylem moves unidirectional. Okay beta? Yes, sir. Na? So what is xylem required for? Movement of water, ions and hormones. Clear? Yes, sir. So and the direction is always Unidirectional. unidirectional. Next thing is movement of food. PGRs. You know that what is PGRs? Hormones, plant growth regulators, है ना? Even ions that can occur through phloem, and that is Bidirectional. bidirectional. Okay beta, write it down. Yes, sir. Done, sir. Done. Yes, sir. Chalo. Now next topic is means of transport. What is the means of transport? What is the means of transport? कैसे आप transport करोगे? We have discussed it. Diffusion, है ना? Yes, sir. So first will be the simple Diffusion. diffusion. In simple diffusion, the movement of ions take place from high concentration to Lower. low concentration till the equilibrium is Established. established. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे movement of ions molecules from region of high concentration to low concentration. Clear? Yes, sir. Okay. So what are the feature of diffusion? Okay. Number one feature is it is a downhill process. You know what is downhill process? Which do not require energy. Excellent. Passive process is known as Downhill process. downhill process. है ना? It is a passive process. It will not require any energy. Yeah. So, and second thing is it is Slow process. slow process. ठीक है? Third thing is non selective process. ठीक है? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस. ये नहीं कह रहा कि भाई किसी को सेलेक्ट करके भेज रहा है, नहीं, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा वो जाओ. समझ गए आप? Yes, sir. Yes, sir. So the driving force is concentration Gradient. Clear? Yes, sir. Okay, write it down. Done, sir. Done? Done, sir. सबने लिख लिया? Done. Yes, sir. Yes, sir. चलिए. Now factors affecting diffusion. What will be the factor that can affect diffusion? Number one factor is concentration gradient, है ना? Only those molecule will be transported from region of high concentration. मतलब जिनका high concentration होगा वही low की तरफ जाएंगे. ठीक है? Yes, sir. And the second point is temperature. Okay. Increasing the temperature increase the kinetic energy. More they collide. Okay. Suppose this is some box, है ना? This is plasma membrane and there are some molecules, है ना? Whenever the temperature increases, they collide with each other, and they collide with each other, they diffuse out
faster, है ना? So whenever you increase the temperature, the diffusion will also increases. Clear बच्चों? जब Yes, भी sir. हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो तेजी से डिफ्यूज करने लगेंगे, ठीक है? Yes, sir. अब तीसरी चीज, third is pressure. What exactly is pressure? When you apply some pressure from this, okay, for example, just take a short straw, है ना? एक स्ट्रॉ लो, है ना? उसमें थोड़ा एक दो बूंद पानी की रखो, ठीक, and just give a force. The water molecule will move ahead, है ना? Because of your air pressure. So increase in pressure will increase in Diffusion. diffusion. Okay बच्चे? Yes, sir. Okay, and the last and one of the most important is permeability of membrane. Okay, if the membrane is impermeable to some substance, ions, molecules, solutes, or anything else, it will not allow to move out or in. Clear? Yes, sir. The rate of diffusion is directly proportional to all these things. Clear? Yes, sir. Any कुछ को doubt? No, Nothing, sir. sir. Very good. चले आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. हम्म. देखो, एक तो हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है बेटा फैसिलिटेटेड Diffusion. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. देखो बच्चों क्या होता है, व्हाट हैपेंस, देयर इज सब सब्सटेंस व्हिच गेट डिसॉल्व इन लिपिड्स, है ना? ठीक है, तो व्हाटएवर द substances, that is, or whatever the molecule is, whatever the ion is, it depends on the solubility of its, yeah, of solubility of the solute to the lipids, whether it is soluble in lipids or not. देखो होता क्या है, what happens whenever a substance is soluble to lipid, soluble to lipid, what will happen? That will move faster or not? Yes, sir. है ना? If it's soluble to lipid, that it will move faster. But whenever the substance is insoluble to lipid, that will require an additional substance to transport it from one end to Another end. another end. So somebody have to facilitate that. In that case, we need some protein. These are known as carrier proteins, transmembrane protein. Okay, beta? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जब भी हमें कोई ऐसा सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करना होगा जो कि लिपिड में इंसॉल्युबल हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का. ट्रांसमेम्ब्रेन protein. Clear बच्चे? Yes, sir. And through the transmembrane protein is known as facilitated diffusion. Clear? Yes, sir. Okay. There are two kinds of protein you must know. That is porins and carrier protein. है ना? Porins are nothing but the aqua channel, and that is present in bacteria. है ना? It is present in bacteria, and these are found in plants. Clear? Yes, sir. चले लिख लें इसको. Done, sir. ओके, सबने लिख लिया?
Yes, sir. Okay, look here. Number one is symbol. Suppose this is what? Plasma membrane. This is what? Plasma membrane. Okay. And this is ion or solute moving in this direction. Okay. कहाँ मूव कर रहा है बच्चे? इस डायरेक्शन में. आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. ठीक. And there is another ion which is moving in the same direction. ठीक है. When two ions or solute moves in same Direction. this transport is known as Symport. symport. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now second is, Antipode. चलिए एंटीपोड लिखा देंगे. तीसरा कौन सा है? एंटी. सपोज देयर इज दिस मॉलिक्यूल. ठीक है. इट इज मूविंग in this direction and the similar molecule moving in this direction, opposite direction. When the two molecules move in opposite direction, known as antipode. But when a single molecule moves in a single direction, known as Unipode. unipode. So we can have three kinds of transport on the basis of direction. Clear, bachcha? Yes, sir. So third type of process of transport is active transport. You must have heard about it. Yes, What sir. is active transport? Active transport. So first thing is it always the against the Concentration gradient. concentration gradient. It always moves against the concentration gradient. Okay. So from low concentration to High concentration. to high concentration. Okay. And from and for this it requires ATP. ATP. It requires ATP. Okay. You can write it down. Done, sir. Okay. Now do one question and we will discuss another thing. Okay. Yes, sir. Okay. करो बच्चों.
हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या आंसर है बच्चे? Xylem. हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको एंगेज कर रहा था मैं। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है आपका प्लांट वाटर रिलेशन। क्या टॉपिक है बेटा? प्लांट Plant वाटर water. रिलेशन। देखो प्लांट का वाटर के साथ रिलेशन क्या है ना? ये सब ये कह रहा है, ये तो कह रहा है बच्चों ये। Yes, sir. आपको Yes, sir. मालूम है दुनिया में जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी उसके लिए क्या चाहिए? Water. वाटर चाहिए। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? Water. वाटर है। दूसरी चीज क्या है? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, Yes, sir. है ना? सब चीज उसमें आके घुल जाती है, सब डिजोल्व हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा तो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो वाटर इज वेरी नेसेसरी। मतलब अगर आप देखें, हम गर्मियां होती, गर्मियों में हम लोग क्या खाते हैं? उधर मिलते हैं हिमाचल में गर्मियों में तरबूज, Yes, sir. Yes, sir. है ना? क्यों खाते हैं? बिकॉज तरबूज कंटेन, वाटरमेलन कंटेन ओवर ओवर 92% ऑफ द वाटर, है ना? Yes, वाटरमेलन sir. में क्या होगा? 92% ज्यादा वाटर होगा, इसलिए गला तर हो जाता है, ताजगी आ जाती है। ठीक है, इवन अगर आप हर्बेशियस प्लांट को देखें तो उनमें 85 से लेकर 90% तक क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो सब प्लांट की एक रिक्वायरमेंट है वाटर, और वाटर के साथ प्लांट का बड़ा ही गहरा रिलेशन है। अच्छा, अब ये नहीं कि सारे प्लांट्स में, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, सब में वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी। डिपेंड करती है कहाँ पर कौन सा प्लांट पाया जा रहा है और प्लांट का कौन सा पार्ट है। जैसे कि हार्ड पार्ट होगा, वुडी पार्ट होगा तो वहां पर पानी कम होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना? जो सॉफ्ट पार्ट होंगे प्लांट के, वहां पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा। अच्छा, आपने बीज देखा है? बीज, सीड जिसको हम कहते हैं, तो सीड में आपको ड्राई दिख सकता है सीड, मगर उसके अंदर वाटर होता है, अदरवाइज वो रेस्पायर नहीं नहीं करता। कर नहीं सकता, होता। है ना? तो अगर वाटर नहीं होगा, रेस्पायर नहीं करेगा, और रेस्पायर नहीं करेगा तो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो सीड में भी क्या होगा बच्चों? वाटर आपको मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. और एक और बात बताऊं, आपने कौन प्लांट देखे? भुट्टे का, मक्का, भुट्टा, कौन? Yes, CORN। sir. देखा है. Yes, तो देखें sir. तो उनमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा, अगर अब कॉर्न में देखेंगे आप, उसमें अगर आप इस दवा भी दोगे ना कॉर्न की सीड्स को, तो लिक्विड निकलता Yes, sir. निकल. है, जस्ट बिकॉज दे एब्जॉर्ब अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे। ये 3 लीटर पानी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो प्लांट का वाटर के साथ रिलेशन बहुत जबरदस्त है। तो हम लिखते हैं वाटर इज नेसेसरी फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। क्लियर? Yes, sir. दूसरी चीज, वाटर इज यूनिवर्सल। Solvent. हाँ, क्लियर बच्चा? Yes, sir. ठीक है, देखो अब एक बात सुनो, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सुना है ना? Yes, sir. कभी हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, कभी हम कहते हैं सेमी परमिएबल, कभी कहते हैं परमिएबल, और कभी बोलते हैं भाई, बहुत सारे होते हैं ना, कि कभी किसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं आप इम्परमिएबल, ऐसा भी होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मतलब मैं बता रहा हूँ कि प्लांट के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ध्यान से सुनना। प्लांट के पास बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं जिनकी परमेबिलिटी डिफर करती है। तो मैं इसको लिख रहा हूं तब और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इधर मैंने लिखा क्या बच्चा? मेम्ब्रेन। इधर क्या लिखा मैंने? डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये मेम्ब्रेन जो है कैसी है? Permeable. परमेबल है। ध्यान से सुनना, दो चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है, एक सॉल्यूट और दूसरा Solvent. सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और दूसरा कौन सा है? Solvent. सॉल्वेंट। अगर परमिएबल लिखा है तो यहां पर कोई शर्त नहीं है, यानी कि दोनों ही मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है बच्चा? Yes, sir. Whenever the membrane is permeable, it will allow the transport of solute and
Solvents. सॉल्वेंट। क्लियर बेटा? Yes. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किधर? अक्रॉस द, अक्रॉस इट या अक्रॉस इट, अक्रॉस इट सही रहेगा, अक्रॉस इट। इसका एग्जाम्पल है बेटा प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? Yes, sir. Now if I am telling you that the membrane is Semi-permeable. semi permeable, ठीक, सेमी मींस आधा परमेएबल है, पूरा नहीं है। सेमी का मतलब तो आधा हुआ ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. So, है ना? अब ये कह रहा है क्या करेगा, या फिर सॉल्वेंट को, हेलो आवाज आ रही बच्चों? Yes, सर नहीं sir. Yes, sir. बीच है में ना? कट तो हाँ मैं समझ गया था। इट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट। खत्म हो गई बात। किसका अलाउ करेगा ये? solvents का. सॉल्वेंट का। तो जैसे कि आपको याद होगा, एक है एग्जांपल ह्यूमंस का दे रहा हूं यहाँ पे, यूरिनरी Bladder. ब्लैडर। एक होता है सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दैट इज आल्सो Semi-permeable. सेमी परमेबल। पार्चमेंट, Yes. okay बच्चे, these are semi permeable membrane. Another, now we talk about the Selectively permeable. selectively permeable. You all know who is this membrane, कौन है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर सेलेक्टिवली होता है क्या है? देखो, करेगा तो ये अलाउ सॉल्वेंट को भी करेगा और Solute. सॉल्यूट को, मगर सॉल्यूट कैसे होंगे यहाँ पर? Selective. सेलेक्टिव, है ना? जिसको ये सेलेक्ट करके अंदर लेके आएगा तो वो सॉल्यूट आएगा, जिसको सेलेक्ट करके बाहर भेजेगा तो वो सॉल्यूट जाएगा। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से सॉल्यूट बाहर चला जाएगा। तो इट विल अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ solute, sorry, solvent as well as some selected, Solutes. very good, solutes। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन ओवर द वैक्यूल? व्हाट इज द नेम? टोनोप्लास्ट। Okay, tonoplast and some organelle membrane are also semi-permeable। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? Yes, sir. Last will be the impermeable। Impermeable, in impermeable case what will happen? No transport। Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो कहां पर होता है? हमने पढ़ा था that cuticle layer of epidermis, it will not transport, Yes, sir. है ना? Suberin, it will not transport। So suberinized cell wall और cutinized cell wall will not transport any of the solute or solvent। ठीक है बच्चा, क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चले इसको आगे लिख लिया बच्चों, फिर मैं हटाऊं। Yes, sir. Yes, sir. डन, सबने लिख Done, लिया? sir. चलो Yes, sir. आगे समझते हैं। देखो, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप की, क्या हो रहा है भाई? हाँ, ठीक है, कितने टाइप के सॉल्यूशन है दुनिया में? देखो, 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है, और इसको समझ लिया तो ये चैप्टर तुम्हारा 50% क्लियर हो गया था। ठीक है, मान लीजिए एक बीकर ये है और दूसरा बीकर ये है, ठीक है? ये आपका बीकर है और ये कौन सा है?
एक्सटर्नल। इतना पॉइंट क्लियर? Yes, sir. इसमें कुछ सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इसमें कुछ सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. या मैं ये कहूं यहां पर आप सेल ले लो, ये आपका सेल है, सेल के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं, तो सेल में साइटोप्लाज्म होगा, Yes, sir. ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, सॉल्यूट कम है, क्या है बच्चों? Solute come. Come. सॉल्यूट कम है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये कैसा हो गया, इट इज मोर डाइल्यूट Yes, sir. देन दिस, Yes, sir. क्योंकि इसमें सॉल्यूट कैसे हैं, High. हाई है, ज़्यादा. ज्यादा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, देखो ये तो मैं समझाने के लिए अगर हम एक लाइन बोलूंगा उससे तुम्हें याद होना चाहिए। देखो हम लोग जब भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन बनता कब है, जब कोई चीज वाटर में Add. घुल जाती है ना बच्चों? Yes, sir. यही तो होता है, जब वाटर में कोई चीज घुल जाएगी वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक। अब मैंने ये बताया कि यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट Come. कम है, ये तो आपको डेफिनेशन याद कराने के लिए हो गई। ये सॉल्यूशन हो गया बच्चे, यानी कि हाइपोटोनिक। अभी जरा समझाऊंगा, क्योंकि इसको नहीं समझाना तो बेकार है चैप्टर की, बात समझना मेरी। कैसा सॉल्यूशन हो गया, Hypotonic. हाइपो। अब इसको कैसे याद रखें, है ना, हम सिर्फ वाटर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। इसमें फ्री वाटर क्या होगा, Come. कम होगा, इसमें फ्री वाटर ज़्यादा. ज्यादा होगा। इसके मुकाबले क्या हो गया, फ्री वाटर कम, यानी कि हाइपो हो गया सॉल्यूशन ये। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर होगी बात? Yes, sir. चलो इसको लिख देते हैं, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन is more diluted than cytoplasm of cell। क्लियर होगी? Yes, sir. दूसरा क्या होगा, Hypertonic. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं ये कहूं कि if the external solution is more concentrated than, Cytoplasm of the cell. ठीक है, okay, if the external solution is more concentrated than the cytoplasm of cell, the solution will be known as, Hypertonic solution. clear? Yes, sir. And last is Isotonic solution. isotonic solution, equal, ठीक है। Yes, sir. इसको लिखो जरा, Done, sir. Done, sir. Done, sir. done। Yes, sir. Now we will talk about the osmosis. What is osmosis? देखो, movement of water from region of high concentration to Low. low concentration. ठीक है, तो this is known as osmosis, movement of
water from a region of high concentration to the region of low concentration. low concentration. ठीक है बेटा? Yes. sir. हम्म ओके. चलिए, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं ऑस्मोसिस को? कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं बेटा? सर concentration का. सबसे पहला फैक्टर तो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया. ठीक है. Yes. दूसरा क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. सबसे पहला हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा हो गया Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर. चलो लिखो इसको. Done, sir. डन. Yes, sir. ओके. चलिए चैम्बर बनाते हैं जरा थोड़ा समझने के लिए. ठीक है. एक ए है और दूसरा बी है. ये आपके क्या है? Solutes. सॉल्यूट. ठीक है. कौन से चैम्बर में सॉल्यूट पोटेंशियल कम है? A में. ए में. और कौन से चैम्बर में वाटर पोटेंशियल कम है? Sir, B में. बी. ये बात समझ में आ रही? Yes, sir. Yes. ठीक है. यानी कि हमें ये बात समझ में आ रही है कि भैया यहां पर क्या ज्यादा है? Water. Solvent. वाट हाँ, वाटर ज्यादा है और यहाँ पर वाटर कम हो गया. वो किसके साथ मिक्स हो गया? Solutes. सॉल्यूट के साथ. एक क्लियर है बच्चे? हेमराज? Yes, sir. तो हमें दिख गया भाई चैम्बर ए में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और चैम्बर बी में वाटर का कंसंट्रेशन कम है. कम है. तो किस तरफ जाएगा? Sir, A to B. ए टू बी. यानी कि ऑस्मोसिस विल ऑकर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू Low concentration. लो कंसंट्रेशन. ठीक है. नाउ दिस वन इज हाइपरटोनिक. हाँ या ना? हैविंग मोर सॉल्यूट. Yes, दिस sir. वन इज Hypotonic. hypotonic. Okay. Now the water always move from hypotonic to. Hypertonic. ये याद कर सकते हो तुम लोग. ये याद करने का है. ठीक है. Yes, sir. The movement of water always take from hypotonic solution to. Hypertonic. Hypertonic. तो वो हाइपो से आपको कम लगेगा नहीं. कम अगर सॉल्यूट है तो वाटर कैसा है? ज्यादा है. ज़्यादा. और ज्यादा सॉल्यूट होंगे तो वाटर ऑलरेडी कम. कम हो जाएगा. क्लियर है बात? Yes, Yes, sir. sir. सब बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो एक क्वेश्चन और करो फिर आगे समझाते हैं.
क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. करो, बाकी बच्चे भी करो यार, हम लोगों ने आंसर दिया है। हो गया बेटा? Yes, sir. बहुत कम बच, क्या आंसर है बेटा? कौन सा? B. बी, सेलोफेन और Parchment. Parchment membrane. चलिए, इतना समझ में आया बेटे? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? No, sir. नहीं, सब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बच्चे, चलो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? ऑस्मोसिस पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना? Yes, sir. ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी को पता है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? The pressure needed to do reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ध्रुव, थोड़ी बात को। सर जब ऑस्मोसिस हो रही होती है सर, तो फिर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो प्रेशर से ज्यादा होता है वहां के, तो फिर ऑस्मोसिस सर रिवर्स डायरेक्शन में होने लग पड़ती है। अच्छा, मतलब कि मान लीजिए हमने ये एक सेल है, तो ये वाटर अंदर आ रहा है, इसके अगेंस्ट जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक। एक्चुअली देखो बच्चों, कोई भी, मान लीजिए वाटर है, ये एक सेल है, थोड़ा सा यहाँ सेल को लेते हैं, और इसमें क्या है? वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब क्या करता हूं मैं, इसमें क्या ऐड कर दूं? सॉल्यूट ऐड कर दूं। बात समझ में आ रही है? क्या ऐड कर रहा हूं बच्चे में? Solute. सॉल्यूट। दैट सॉल्यूट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन दिस वाटर। ये सॉल्यूट क्या काम करेगा? एक प्रेशर डालेगा किस पे? इस वाटर पे। तो ये जो प्रेशर पड़ा है, ये प्रेशर क्या हो गया?
Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर। पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ? 1%। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये कह दूं ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. जैसे जैसे मैं सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा. बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Solute concentration. कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लीजिए ये एक पानी है जिसमें एक जर्रा बराबर भी क्या नहीं है, सॉल्यूट नहीं है। सॉल्यूट क्या है? जीरो। ये मेरा वाटर कैसा हो गया? Pure water. प्योर वाटर। यानी कि इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है? Zero. जीरो। कोई प्रेशर पड़ रहा होगा इसका? No, sir. अच्छा. नहीं पड़ रहा होगा ना बच्चों? Yes, sir. बिल्कुल भी। दैट इज वाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज Zero. जीरो। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. The osmotic pressure of pure water is always zero. Zero. Pressure increases as solute increases. ठीक है? And pure water has how many? Zero osmotic pressure. Zero osmotic pressure. Clear? Yes, sir. कितना होता है? Zero atmospheric pressure. ठीक है? Even the OP of OP समझ रहे? Yes, sir. Yes. Electrolytes are more than non-electrolytes. बस ऐसी लाइन याद करने के लिए लिखा दी मैंने। ठीक है, समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलें लिख लें, बाकी कल करेंगे यार। एक क्वेश्चन और देते हैं, बाकी कल। Done, sir. डन, सबने कर लिया? ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलें। चलो बच्चे एक क्वेश्चन और कर लो बस, लास्ट। Simple. Single molecule in its direction. Second is double molecule in opposite direction. C. Double molecule in same direction, or it is active transport. चलिए करिए, लास्ट क्वेश्चन है, फिर छुट्टी कर देता हूँ। हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, क्या आंसर दिया आपने? Double molecule in same direction. Molecule moving in Same direction. that is simple.
ठीक है बेटा, Yes, sir. बाकी कल देखते हैं, है ना, आगे पढ़ते हैं इसको। Thank you, sir. Good night, sir. हेलो, बाय बाय, टेक केयर। Yes, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.